फाउंडेशन से मिलने आए हैं यहाँ पे। इनका फाउंडेशन का नाम है जीवन धारा फाउंडेशन और ये 25 साल से चालू है, स्टार्ट है, कर रहे हैं काम यहाँ पे। और इनकी बालवाड़ी चल रही है, जो बच्चे छोटे बच्चों से लेकर 9th स्टैंडर्ड तक का है बालवाड़ी में। ये ट्यूशन क्लासेस भी फ्री में कराते हैं बच्चों को, जो कि लगभग 300 प्लस बच्चे आ रहे हैं। लगभग इनकी 12 प्लस क्लासेस चल रही है, जो कोरोना के पहले जो है और भी ज़्यादा थी, लेकिन उसके बाद थोड़े कम हो गई। लेकिन फिर भी बच्चों को हेल्प करने के लिए बहुत इन्हें सक्षम है यहाँ के, और काफ़ी काम किया गया कोरोना पीरियड में भी, डिस्ट्रीब्यूशन, अनाज डिस्ट्रीब्यूशन। नमस्कार, माय नेम इज़ जीन डिसिल्वा and I am the founder of Jeevan Dhara. We started this activities 25 years ago, but the reason why I got started, actually I was a football player and I was very good in athletics, and my dream was to go for the handicapped Olympics and to play for a corporate team, but because of my handicap I was not given a chance to play for some reason, and also I tried getting a job in various industries like the rigs and shipping industry, hotel industry, and because of my hand I was rejected. So due to that I went into depression and loneliness, and I went into drugs and alcohol. I did this for almost 6 to 7 years. And my mother was behind me all the time. She said, no, this is not the end of the world. There are better things to do. एक दरवाजा बंद है तो there are many, बाकी बहुत सारा दरवाजा खुला है. On the persistence of my mother, I said my mother is not going to give up on me, so let me try. अभी मैं क्या करूँ, because I am not physically, mentally strong to face the world. So I went to Mother Teresa's home, Ashadan, Baikala. उधर मैं गया and there was one Australian sister. उन्होंने बोला कि I told her this is my situation. Can I do voluntary work? वो बोला yeah sure. 6:30 सुबह से 6:30 शाम तक. I used to do all odd jobs like cutting the nails of the old patients, feeding them, dressing their wounds, giving them bath, all odd jobs. After doing this for 9 months, I realized that this is what I want to do for the rest of my life. पहला मैं सोचा था मैं बेचारा, I used to self-pity. But when I went there, I saw those people are worse than me, and they are smiling. So I also, I should do something for them. So that is when I got the calling that I should do this kind of work for the rest of my life. Then when I met my wife, because she was working for Don Bosco, Matunga, and she was working in the development office. So there in the development office I learned that we should not give them fish to eat, but we should teach them how to catch the fish. So that's how we started development work, Balwadi, study classes, adult literacy classes, vocational training, ऐसा, and rehabilitation center for street-based and slum-based drug addicts and alcoholics. Myself नेहा शेट्टी, मैं जीवन धारा संस्था में काम करती हूँ एज अ अकाउंटेंट, और मुझे बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी दी शोभा डिसिल्वा, जीन डिसिल्वा, इन्होंने। मेन फोकस है जो बच्चों के ऊपर है, जो बच्चे ट्यूशन नहीं ले पाते हैं, और बालवाड़ी से लेके एमएससी क्लास, स्टडी क्लास उनके लिए जाते हैं, और उनके फ्यूचर के लिए उनको आगे प्रोग्रेस किया जाता है। तो ये बच्चों के जो ड्रीम्स है वो जीवन धारा की तरफ से पूरे हो रहे हैं। वुमेन्स के लिए वोकेशनल ट्रेनिंग होती है। मेरा नाम मंजू सिंह है। मैं जीवन धारा में जुलाई से आई हूँ। जानने के बाद भी हाँ कि मैं कान से कम सुनती हूँ, फिर भी सवा मैम ने मेरे को सेलेक्ट किया, जिन्होंने इंटरव्यू दिया, और ज्योति मैम ने भी मेरे को मतलब अच्छे से समझा, हर चीज में मेरे को तकलीफ में साथ दिया। जीवन धारा में मतलब मेरे को आगे मतलब बढ़ने के लिए चांस मिल रहे, तो वो शोभा मैम है जिनकी वजह से मुझे आगे बढ़ने का चांस है। डॉन बॉस्को में थी तो मुझे कहा गया था कि इनके प्रोजेक्ट को जाके आप देखो, क्योंकि डॉन बॉस्को इनको सपोर्ट करता था। तो मेरा काम था कि ये जो हम पैसा दे रहे हैं ये बराबर यूज़ कर रहे हैं या अपने
जेब में जा रहा है। मैंने जो है वो डेवलपमेंट काम सीखा है। डेवलपमेंट का मतलब होता है वेलफेयर से शुरुआत करो पर डेवलपमेंट पे ले जाके ख़त्म करो। इनको मैंने सजेस्ट किया कि आपको डेवलपमेंट काम शुरू करना चाहिए और डेवलपमेंट की शुरुआत होती है कि मतलब उनको पढ़ाओ, उनको अपने पैरों पे खड़ा करो और एक रास्ता दिखाओ। तो इसके बाद में हम लोगों ने अपनी एक्टिविटी बढ़ाने के लिए शुरू की, वोकेशनल चालू किया। फिर उसके बाद में हमारे स्टडी क्लास बढ़ते गए, बालवाड़ी बढ़ते गए। दूसरों के साथ में मैंने नेटवर्क करके वहाँ के लड़के लड़कियों को बाहर ट्रेनिंग के लिए भेजा कि भाई तुम वोल्टास में जाओ, तुम श्रमिक विद्यापीठ धारावी में जाओ, इस तरह के सारे कोर्स लो और उसमें अपने इनकम जनरेशन एक्टिविटी चालू करो। उसके बाद में एंटरप्रेन्योरशिप ट्रेनिंग दी गई उनको कि भाई बिजनेस शुरू करना है तो आप कैसे बिजनेस शुरू कर सकते हैं, आपके डॉक्यूमेंट कहाँ मिसिंग है। तो वो डॉक्यूमेंट के लिए भी हम लोगों को बहुत मशक्क़त करनी पड़ी क्योंकि उनके पास में राशन कार्ड नहीं था। उस ज़माने में मैं राशन कार्ड, पैन कार्ड, आधार कार्ड उस ज़माने में नहीं था। तो हम लोगों ने राशन कार्ड के लिए, वहाँ पे राशन कार्ड के लिए उन लोग 10-10 हज़ार रुपया देते थे बनाने के लिए। तो हम लोगों ने ये उनको रास्ता देखा कि राशन कार्ड कैसे बना सकते हैं। फिर आपकी स्कूल की शिक्षा है उसको पूरा करना ज़रूरी है कि कोई भी चीज़ के लिए अगर आप 10वीं पास नहीं होंगे तो आप आगे की आपको लाइन नहीं मिल सकती है। तो काउंसलिंग के कोर्स, मैंने काउंसलिंग के सेशन कराए वहाँ पे। हम दोनों को ये ताकत दी और ये रास्ता दिया कि हमको ये काम करना है। अगर मेरा बैकग्राउंड देखा जाएगा तो मैं एक ब्राह्मण समाज से आती हूँ और ये देखा जाएगा तो कैथलिक समाज है इनका, और जो काम हम कर रहे थे वो मुस्लिम समाज है। तो आज जब लोग ये बातें करते हैं धर्म के बारे में, इसके बारे में, कहीं तो भी फिर मैं सोच में पड़ती हूँ कि मतलब कैसे उनको बताया जाए, क्योंकि धर्म एक ही है, इंसानियत, और समाज दो है, अमीर और गरीब। जीवन धारा में आने से पहले मैं एक डॉन बॉस्को शेल्टर डॉन बॉस्को में था। वहाँ पर मैं एक्चुअली ऑर्फन बॉय हूँ। जो बच्चे लोग तकलीफ में रहते हैं, जो फैमिलीज को प्रॉब्लम्स है और वो अपने बच्चों को एजुकेशन नहीं दे पा रहे हैं, उनके लिए मैंने फंड रेजिंग करना चालू किया। और मैं बच्चों लोगों का सेशन लेता हूँ, चिल्ड्रंस पार्लियामेंट लेता हूँ, जो उनके अधिकार के ऊपर बात होता है, जो उनके राइट के ऊपर किया जाता है। हमारे चिल्ड्रंस पार्लियामेंट के बच्चे नेशनल लेवल पे है, कोई एजुकेशन मिनिस्टर है, कोई क्लाइमेट चेंज का मिनिस्टर है। और मेरा काम बेसिकली बच्चों के साथ में कनेक्ट होकर के उनकी मदद करना, उनको अलग अलग चीज़ों में आइडियाज़ देना, ये मेरा काम है। मेरी बच्ची सीनियर जूनियर से जीवन धारा में पढ़ रही है। आज अल्हम्दुलिल्लाह 6ठी क्लास में है मेरी बच्ची और अव्वल नंबर से पास होती है हर बार। और वहाँ की टीचरें भी बहुत अच्छी है, हम लोगों का बहुत देखभाल करती है, राशन पानी से हर चीज़ से हम लोग को वहाँ पे सहूलियत है। मैं तो चाहती हूँ जीवन धारा को आप सब लोग मिल के हेल्प कीजिए ताकि जीवन धारा गरीबों की हेल्प करे। और हमें ड्राइंग के लिए बाहर भी लेके गए हैं, जैसे पवई और भी जगह लेके गए जहाँ पर हमें कंपटीशन ड्राइंग के लिए हुआ है। और हम लोग बहुत ज़्यादा अच्छा भी लगता है, वहाँ पर गेम्स सेशंस और अच्छी बातें सीखने मिलती है। बैक टच एंड गुड टच के बारे में बताते हैं। बच्चे पढ़ रहे हैं, अच्छे से ट्यूशन जा रहे हैं, यानी कि हमें हर चीज़ की मदद वहाँ से हो रही है बच्चों के लिए। हमारे जीवन धारा में इनके बच्चे पढ़ते हैं और इनकी जो बेटी है, अभी कोविड के समय ऑनलाइन क्लास चलता था, तभी उस बच्चे के पास मोबाइल नहीं था, तो जीवन धारा ने इनके बच्चे को मोबाइल भी दिया ताकि उनकी पढ़ाई में कोई दिक्कत ना आए और उस मोबाइल की वजह से वो अपना पढ़ाई पूरा कंप्लीट कर सकती है। अभी कॉलेज जाती है वो। और इनका जो छोटा बच्चा है वो अभी हमारे जीवन धारा में ट्यूशन पढ़ता है। ये इनके हस्बैंड नहीं है, उनका डेथ हो गया। वो अपना छोटा सा यहाँ पर ऑनियन और ये इसका धंधा लगाते हैं जिससे इनका घर चलता है। और जीवन धारा ने इनको राशन का इस तरह हर तरीके से जितना हेल्प कर सकते किए ताकि उनके बच्चों का पढ़ाई रुकना नहीं चाहिए कि सिंगल पेरेंट्स से करके काफ़ी मदद किए हैं। और मैं चाहूँगी कि इसी तरह इनको मदद मिलते रहे और इनका जो बच्चों का पढ़ाई हुआ है वो जो ना रुके और कंटिन्यू वो पढ़ाई पढ़ के आगे और बढ़े। हम लोगों ने बहुत सारे प्रोग्राम किए, वो वहाँ के मौलवी ने मस्जिदों में खुद हमारे काम के बारे में अनाउंसमेंट की। तो दिस इज़ द पॉजिटिव चेंज। जीवन धारा संस्था हमारे ही मोहल्ले में है जहाँ पर मतलब बहुत सारे बच्चों को अलग अलग तरह से ट्यूशन दिया जाता है। और जीवन धारा एरिया में भी काम करती है, जैसे जो बेवा औरतें उनको राशन प्रोवाइड करना, और जो बच्चे मतलब स्कूल छोड़ चुके ड्रॉप आउट है उनको नए सिरे से ट्यूशन दे करके एग्ज़ाम देना।
या जो परेशान हाल है, जैसे बुजुर्ग है, घर में छोटे बच्चे हैं, माँ बाप काम पर जाते हैं और बच्चों की पढ़ाई पे ध्यान नहीं देते। और मेरा सबसे बड़ा एक प्रोजेक्ट है नशा मुक्ति केंद्र जो टिटवाला में है। ये जो नशा मुक्ति केंद्र है ये मैं खास करके रोड पर के रहने वाले और झोपड़पट्टी के रहने वालों को मैं अपने सेंटर में जगह देती हूँ। और हमारा नशा मुक्ति केंद्र थोड़ा अलग है क्योंकि हम लोग जो एडिक्ट्स है उनको लॉक एंड की यानी बांध के नहीं रखते। गेट हमारा खुला रहता है, लेकिन सारे दिन का हमारा टाइम टेबल भी रहता है। उस टाइम टेबल के हिसाब से हम एडिक्ट को अपने 3 साल अपने पास रखते हैं और हम लोग ये कोशिश करते हैं कि वो अपनी इच्छा से हमारे पास आवे, सुधर के जावे। तो सक्सेस स्टोरी ये है कि उसमें आपको ऐसे भी मिलेंगे बैंक में काम कर रहे हैं, रेलवे में काम कर रहे हैं। जैसे आप जीवन धारा में हो तो इधर का प्रोग्राम शेड्यूल सुबह से ऐसा है कि 6:25 का वेकअप रहता है, 7:15 बजे का डिवोशन रहता है, प्रार्थना होती है, 8:15 साढ़े 8 बजे का नाश्ता होएगा, फिर जिसको दवाई देने का दवाई दी जाएगी, फिर उसके बाद फिर 15 मिनट का ब्रेक के बाद फिर थेरेपी चालू होगी जिसको बोलते हैं वर्क थेरेपी। थेरेपी रहती है साफ़ सफाई, जो अपने घर की साफ़ सफाई करने का रहता है। अच्छी तरह की साफ़ सफाई होगी पौना घंटा साफ़ सफाई करने के बाद फिर एक मॉर्निंग मीटिंग होगी जो अपनी एक दूसरे की गलती एक्सेप्ट करने का। तो आज जो गलती हमारे को समझ में आती है कि ये गलती करना गलत है, अभी इसको ही फुल स्टॉप लगाएंगे तो आगे गलती नहीं करेंगे। तो गलती वो प्रोग्राम हमारे को मॉर्निंग मीटिंग हमारे को ये मैसेज देता है। तो हिम सेशन देता है, जैसे प्रार्थना हमारे को सिखाई जाती है, प्रार्थना बोलना पड़ता है, जो दिन भर का शेड्यूल है वो सब बोलना पड़ता है, सब सीखना पड़ता है। फिर उसके बाद 1:45 बजे खाना रहता है, फिर फ्री टाइम है यानी कि 4 से 5 तक साइलेंस टाइम दिया जाएगा। साइलेंस टाइम में भी ऐसा है कि 3 सवाल दिया जाता है, हम यहाँ क्यों है, हमारा यहाँ आने का मकसद क्या और हम यहाँ क्या कर रहे हैं। इसमें अपने आप की इन्वेंटरी लेने का 8 बजे के बाद खाना रहेगा, प्रार्थना होगी, डिवोशन होगा, लेट ऑफ गुड नाइट, मेडिटेशन होने के बाद। अच्छा जॉब में था, नेवल डॉक एकेडमी सर्विस को था, उधर का नौकरी चला गया, सब घर जाने से भी बेचैन हो गया। फिर बाद में इतना नशे का आदी हो गया कि मेरे को कोई चाहिए नहीं था, खाली नशा मांगता था और कहाँ से पैसा मिलेगा वो चाहिए था जिंदगी में। तो इंजेक्शन में लेते लेते एक मेडिकल से एविल करके मिलता था, ऑयल मिक्स करके भी हम लोग लेते थे। वो एविल तो लेडीज लोग को डिलीवरी के लिए यूज़ किया जाता है, पर हम लोग यूज़ करते थे वो नशे के लिए। तो ऐसा करते करते इतना रॉबॉटम में आया कि रास्ते पे पड़ा हुआ था, रास्ते पे पड़ा हुआ था बोलता ना, तो बोलते ना मालिक को बचाना था। मतलब मेरे साथ वाले तो सब मर गए, गुजर गए सब स्मैच फिक्सिंग में, और मेरे को मालिक ने क्यों जिंदा रखा ये मालूम नहीं। मालिक बोलता ना, मालिक तो आता नहीं, कभी किसी को फरिश्ता बना के भेजता है। तो जीवन धारा का कोई आदमी आया था और मेरे को बोला तुम्हारी इच्छा क्या है, छोड़ने की इच्छा है क्या? तो मैं बोला हाँ सर छोड़ने की तो इच्छा है। तो बोलता है तेरी सच्ची में इच्छा है नशा छोड़ने की? बोला हाँ सर नशा छोड़ने की इच्छा है। तो उसने मेरे को उधर से लेके गया हॉस्पिटल में मेरा ट्रीटमेंट किया। मैं नशे में पहले तो घर वाले के टेंशन में पड़ा कि घर वाले मेरे को प्यार ही नहीं करते थे, मैं नशा करता हूँ बोल के मेरे को दूर ही रखे थे, कोई समझ ही नहीं पाया मुझे क्या। तो इसलिए मुझे एक चांस पहले भी दिया गया था इस जीवन धारा ने। तो मैं यहाँ से सुधर के गया था, अच्छे पोजीशन में अच्छा होके गया था। बाकी मैं नशे में ऐसा गिरा कि मैं लास्ट टाइम पे ऐसा लगा कि मैं ऐसा ही रहूँगा तो मर जाऊँगा बोल के। मैं बोला नहीं, कैसा भी मुझे सेंटर में मुझे मना किया था आने के लिए, फिर भी मैं ऊपर वाले का एक उम्मीद रख के मैं बोला मेरा जान बच जाएगा अगर मैं वहाँ चले जाऊँगा तो, ऐसा रहूँगा तो, नहीं तो मैं मर जाऊँगा। खाना पीना सब भूल गया था, दिन रात सब भूल गया था, ना नहारा नहीं धोरा नहीं, कुछ भी नहीं ठीक से। एक एक कपड़ा 4-4 दिन 5-5 दिन पहन रहा हूँ, ना शकल देख रहा आईने में, कुछ नहीं। तो लास्ट चांस मुझे, मैं कैसा अगर फ़ोन करता तो मुझे यहाँ पे सेंटर में एंट्री नहीं देती थी। तो मैंने वहाँ से ट्रेन पकड़ के डायरेक्ट टिटवाला उतर के वहाँ से 6.5 किलोमीटर पैदल चल के आया। चल के आने के बाद उनके गेट पे जब आया, गेट पे जब आके आवाज़ दिया तो सर ने मुझे देखे, मेरी हालत देख के मुझे ले लिए उन्होंने कि मैं तकलीफ में मजबूर हूँ बोल के लिए। अब शुक्र है मालिक का, टाइम टेबल खाना पीना खा रहा हूँ, सब कुछ खा रहा हूँ, सही सलामत हूँ, बस नींद आ रही है अच्छे से, तब नहा धो के फ्रेश हूँ। यहाँ पर आया हूँ तो मुझे मतलब बाहर तो मैं नहाता भी नहीं था टाइम पे। यहाँ पर जब से आया हूँ खाना टाइम पे जा रहा है, बाहर तो खाना भी टाइम पे नहीं खाता था। यहाँ पर नहाता धोता हूँ अच्छे से, सब टाइम टेबल अच्छा है यहाँ पर मतलब मुझे कोई चीज़ की कमी नहीं है।
बल्कि याद ही नहीं आती कि कोई चीज़ की, जो मांगो वो मिल जाता है। अहम बात ये है कि बाहर में किसी की सुनता नहीं था। आज मेरे एटीट्यूड पे भी काम कर पा रहा हूँ। गुस्सा ज़्यादा था मेरे में, कोई कुछ बोले तो भी गुस्से देखने का, साइलेंस रिएक्शन में देखता था। यहाँ पर मुझे वैसा कुछ भी नहीं, सब जितने एटीट्यूड है उन पे मैं काम कर रहा हूँ अभी। और यहाँ पर एक दूसरे का सपोर्ट मिलता है, सब एक दूसरे मतलब सब भाई मिलके फैमिली जैसे से रहते, सबका एक दूसरे को सपोर्ट है। और यहाँ पर जो भाई है काउंसलर है वो भी सबसे अच्छे है, कभी भी किसी को भी मदद करते। कोई रोड पे भी कोई दिखता है तो उनको खुद से जाके नाश्ता पानी खिलाते, खुद ही बुला के खिलाते हो। तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत धन्यवाद मेरे इस वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू।